Okay, let's start. It's a question answer session. Okay, please. ये सेशन हमारा सवालों जवाब पर मुश्तमिल होगा। So we thank God हम खुदा का शुक्र करते for the हैं grace upon this house, जो इस चर्च पर खुदा का फजल है, and we thank God और हम खुदा का शुक्र करते हैं for the understanding and wisdom God has already given you. कि जो खुदा ने हमें पहले ही फहम समझ दे रखी है You are growing. और आप बढ़ रहे हैं, You are growing in the Lord. आप खुदा में बढ़ रहे हैं। How I can discern this growth? मैं इस बढ़ने को किस तरह जान सकता हूँ? Because what I am teaching you क्योंकि मैं आपको सिखा ये रहा हूँ, is not taught वो कभी सिखाया नहीं गया जो सिखा रहा हूँ, everywhere. हर जगह पर। So that's the guarantee इसलिए ये बात एक गारंटी बन जाती है that you are growing कि आप नशोनुमा पढ़ रहे हैं, पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं better than others. दूसरों से बढ़कर। That's the surety within me. और ये मेरे अंदर भी एक बड़ी श्योरिटी की बात है। After all, it's an experience speaking. और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तजर्बा बोल रहा है, तजर्बे की बात है। Almost 25 years of experience and studies. और ये तजर्बा 25 साल पर मुहित है और वो मतालिया पर भी मुहित है। In the ministry, मिनिस्ट्री के अंदर रहते हुए listening, studying, observing men of God, बहुत सारे मर्द खुदा को देखना, उनको सुनना, उनको ऑब्जर्व करना, and studying the scripture as well. और मैंने कलाम को भी पढ़ा है। So you know I have not taught on this topic for many years. आप जानते हैं कि इस मौजू पर मैंने बड़े सालों से नहीं सिखाया। Why? क्यों नहीं सिखाया? So sensitive. क्योंकि ये हसास मामला है। Because with the least error you can create a heresy. क्योंकि आप छोटी सी गलती से कोई गलत बात को पैदा कर सकते हैं And you can be judged by God as well. और खुदा के सामने भी आप जवाब दे उसकी वजह से हो सकते हैं। Today before service I was speaking with my son Suleiman. आज इस इबादत से पहले मैं अपने रूहानी बेटे सुलेमान से बात कर रहा था। I was sharing with him that church has not been destroyed by the false prophethood. कि जो कलीसिया है उसको तबाह गलत जो नबी हैं उन्होंने नहीं किया। नबूती मिनिस्ट्री कह लें। जी। It has been destroyed by the wrong teachers. लेकिन ये गलत जो उस्ताद हैं उन्होंने इसको तबाह किया है। The fake teachers. जो जाली उस्ताद हैं। Prophetic is not destroying. नबूती खिदमत तबाह नहीं कर रही। Teachers are destroying. उस्ताद तबाह कर रहे हैं। So it's not if I give you a wrong word under the unction of any other spirit other than Holy Spirit. Sorry, repeat it. It will not affect you or your life if I give you a wrong word under the unction of any other spirit other than the Holy Spirit. ये आपकी जिंदगी को तबाह नहीं करेगा अगर मैं कोई आपको ऐसा कलाम दे दूं जो किसी और सिमत से हो, पाक रूह से ना हो। Still the will of God will be accomplished in your lives. लेकिन फिर भी खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएगी। Because you are in the hands of God. क्योंकि आप खुदा के हाथ में हैं। Many voices already they hit you through dreams or visions. You receive prophetic on every day, every moment. हर लम्हे, हर वक्त आप ख्वाब में, रोया में खुदा से ले रहे होते हैं। Not God, I didn't speak God. I didn't say God. You receive prophetic, whether the right or the false, through dreams or visions. आप नबूती तौर पर ले रहे होते हैं ख्वाबों के जरिया से और रोया के जरिया से। Are you listening? So you are not destroyed. आप उससे तबाह नहीं हो रहे होते। What destroys you जो बात आपको नुकसान पहुंचाती है is the wrong teaching. वो गलत तालीम है। So I am very careful. इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ। I told in a lecture मैंने एक लेक्चर में ये बात बताई that the things of the spirit are very dangerous. कि रूह के आलम की बातें बहुत नुकसानदेह भी हो सकती Especially when you talk about Holy Spirit. हैं। खास तौर पर जब आप पाक रूह की बात करते हैं। You can't give a comprehensive teachings from him, this personality. आप इस शख्सियत के बारे में बहुत जामे तौर पर बयान नहीं कर सकते। Yeah, pneumatology is difficult subject. क्योंकि ये एक मुश्किल मजमून है। For me, if I sitting here, I confess that this is a difficult thing. अगर मैं यहाँ बैठे हुए ये बात का इकरार कर रहा हूँ कि ये मुश्किल मजमून है। What about the general church? तो आम कलीसिया के बारे में क्या बात है? Yeah. So let me answer these two questions first of all.
सबसे पहले इन दोनों सवालों के जवाब मैं दूंगा। In my one recent lecture, I said that I was caught up in a golden room. मैंने अपने हालिया लेक्चर्स में बयान किया कि मैं जब गोल्डन रूम में उठाया गया आसमान पर, When I was sharing about the speaking in tongues and the benefits. और जब मैं बात कर रहा था जुबानों में बोलने और उनके फ़ायदे के बारे में, And then I shared this. तब मैंने इस बात को शेयर किया था आपसे। And maybe I did not share completely. हो सकता है मैंने सारी बात को आपसे शेयर ना किया हो। Let me share completely. अब मुझे इसको मुकम्मल तौर पर शेयर करने दीजिए। A voice came from a behind. पीछे से एक आवाज़ मुझे आई। I mentioned that I do not know, I didn't know who was that person. मैंने जिक्र किया था कि मैं उस शख्स को नहीं जानता था जिसकी आवाज़ थी, While standing in the golden room. जब मैं गोल्डन रूम में खड़ा था। That person was leading me to different rooms. वही शख्स मुझे दूसरे मुख्तलिफ रूम्स में लेके जा रहा And था he was giving me the revelation of every room. और वो हर कमरे हर रूम की मुकाशफा मुझे दे रहा था। So your question about that only the person who speaks in tongues can access this golden room. आपका ये सवाल कि जो गैर ज़ुबानों में बोलता है वही गोल्डन रूम तक पहुंच सकता है, That person answered me that only this person can access. उस शख्स ने मुझे जवाब ये दिया था कि हाँ वाकई वही पहुंच सकता है। It's not written in the Bible, ये पाक कलाम में नहीं लिखा, but it's a revelation. ये एक मुकाशफा है, It's a revelation. ये मुकाशफा है। So you can't find it. आप इसको ढूंढ नहीं सकते, You should believe it. आपको इस पर यकीन या ईमान रखना हो। If you believe that I am a man of God. अगर आप यकीन करते हैं कि मैं मर्द खुदा हूँ, This experience was not imaginary. ये तजर्बा कोई तसव्वुराती नहीं था, It was an experience. ये असल एक तजर्बा हुआ है। And I know this experience was so genuine as I know my own name. क्योंकि मैं जानता हूँ अपने नाम की वजह से कि ये तजर्बा बहुत जेन्युइन As है। I know my own name, I know this experience was ये genuine. ऐसे ही जेन्युइन है जैसे मुझे अपने नाम के बारे में कंफर्म है So कि मैं I have no doubt about my name and I have no doubt about this experience. मुझे अपने नाम के बारे में कोई शक नहीं, इसी तरह मुझे इस तजर्बे के बारे में So कोई he शक नहीं। told me only the person who speaks in tongue can access in this room. उस शख्स ने मुझे बताया कि जो गैर जुबानों में बोलता है वही यहाँ तक पहुँच सकता है। And the golden room was actually full of revelations and mysteries. ये गोल्डन रूम जो है मुकाशफात से भरा हुआ था। And then I was taken to another room. फिर मुझे एक और रूम में ले जाया And that गया room was a silver room. और वो सिल्वर रूम था। I think so. I mentioned. मेरा ख्याल है मैंने इसका जिक्र किया था। And in that room, he told me that everybody who is praying उस कमरे में उस शख्स ने मुझे बताया कि जो दुआ करता है can access. वो पहुंच सकता है, उसकी रिसाई हो सकती है। Yeah, he or she can easily access this room. हर मर्दो खवातीन वहां तक पहुंच सकता है अगर उसके पास है दुआ। So no need to worry about इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है that you don't have any access in the heaven. कि आपकी आसमान तक रिसाई नहीं है। In any language, किसी भी जुबान में you pray. आप दुआ करें, Still that language is a language. वो जुबान ही है। Are you listening? आप मेरी बात सुन रहे हैं? If you pray in English, that language will be an unknown language to another person. अब आप अंग्रेजी में दुआ करते हैं, दूसरे शख्स के लिए ये गैर जुबान हो सकती है। Or if I pray in the Persian language, it will be unknown to you. और अगर मैं फारसी में दुआ करता हूँ तो ये आप इसको नहीं जानते हो। So every language is a language. हर जुबान है। Hello? Are you with me? Yes. Understand? Yeah, but about the mysteries and revelations, लेकिन मुकाशफात और राज की बातें जो you need to speak in tongues. वो जुबानों में बोलनी होती है। Are you here? Another question. What was another question? Another question? I forgot. The next question was? Yeah, it was a genuine, legitimate question. ये भी एक जेन्युइन सवाल है। Can I answer you from a scripture? इसका जवाब क्या मैं एक हवाले से दे सकता हूँ आपको? Can you find that scripture where it is written? Okay, you find that scripture where it is written that a person who speaks in tongues edifies his own self.
कि जो शख्स गैर जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। Yeah, please read it. It's obviously Korinth, First Korinth, chapter 12th or 14th, you find it. It's 14th 4. Hey, sons and daughters, where are you? It's 14th 4. Be quick. 14th 4. Can you read in Urdu and then I will read. Suleiman will read in English. जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। Okay. Suleiman. He that speaks in an unknown tongue edifieth himself, Yeah. but he that prophesieth edifieth the church. If you go into the word edifies, अगर आप इस लफ्ज़ का मुतालिया करें एडिफाई का, तरक्की करने का, yeah, the person who speaks in tongues यानी जो शख्स जुबानों में बोलता है, गैर जुबानों में बोलता है, edifies, वो तरक्की चाहता है, करता है edifies himself. अपनी। How? The word edifies. You need to study this word. आपको इस लफ्ज़ के मुतालिया करने की ज़रूरत है। If you go into the Greek linguistic, अगर आप इसको यूनानी जुबान में देखें, you will find some meanings of this word. आपको इस लफ्ज़ के कुछ मानी मिल जाएंगे To construct, कि आप उस पर बुनियाद बनाएं building up, और उस पर तामीर करें। even charging. Charging means when you charge your cell phones. ओके, और ये चार्जिंग के मीनिंग भी देता है, जिस तरह हम फ़ोन को चार्ज करते हैं, Yeah, getting energy. यानी ताकत हासिल करना। Are you listening? This is the meaning of the word tarakki, edify. ये इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी हैं। You construct yourself, आप खुद को तामीर करते हैं, you build up yourself, आप उस पर बढ़ते हैं and you charge yourself. और अपने आप को कुव्वत देते हैं, तरक्की करते That's why a person who speaks in tongues, when he is ministering, he is fully charged. हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शख्स गैर जुबानों में मिनिस्टर कर रहा है वो फुली चार्ज है। When he is praying in tongues and speaking in tongues, he has already edified himself. यानी जो शख्स बेगाना जुबानों में बोल रहा है, दुआ कर रहा है, वो अपनी तरक्की कर चुका है। He is already charged, fully charged. वो पूरा एनर्जी में है, ताकत में है। And when he will come and minister in the church in any congregation, जब वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी मुनादी करने के लिए खड़ा होगा, their charging will be displayed. तो उसकी वो जो कुव्वत है वो जाहिर होगी, That height will be displayed. और उसकी वो जो बुलंदी को उसने छुआ हुआ है वो जाहिर होगी, The construction of his spirit will be displayed. उसके रूह के अंदर जो तामीर है वो जाहिर होगी। That's why it's important to speak in tongues. इसलिए जरूरी है बेगाना जुबानों में बोलना। I'm not saying don't speak. I gave you a scripture. Paul said don't forbid them to speak in tongues. मुकद्दस पौलुस ने कहा कि उन्हें रोको ना जुबानें बोलने से, Keep speaking. उन्हें बोलने दो। Are you listening? Yes. When you are sitting alone, speak in tongues. जब आप अकेले बैठे हैं, आप गैर जुबानों में करें दुआ, बात करें। Driving, speak in tongues. If you are driving, आप ड्राइव कर रहे हैं तब भी आप दुआ करें गैर जुबान में, grow yourself. बढ़े आगे आप। But when you are in the church, लेकिन जब आप कलीसिया में हैं, interpret it. फिर उसका तर्जुमा भी करें। Be a source of edification of the church. हम चर्च की तमीर तरक्की का जरिया है। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? यस। I told you only the infilled person is being used in the gifts. मैंने बताया कि रूह से भरा हुआ शख्स ही जो है वो गिफ्ट्स में इस्तेमाल हुआ। Not just the baptism is requirement. सिर्फ बपतिस्मा ही एक रिक्वायरमेंट नहीं है, The qualification is not just the baptism. सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बपतिस्मा ही नहीं That है you are born of the Spirit. कि आप रूह से पैदा हुए, Or you are
you are, what should I say? Okay, leave it. It's not just the qualification. The qualification is you are filled with the Holy Spirit. इसकी क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट ये है कि आप रूह से भरे हुए हैं। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। 2 questions I addressed. 2 सवालों का जवाब मैं दे चुका। Yeah. One more question was raised. एक और सवाल उठाया गया। I don't want to leave the church or the online audience in confusion. मैं नहीं चाहता कि चर्च और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो किसी कंफ्यूजन में रहें। Somebody was so intelligent. I was expecting from my people the level of intelligence that person showed to me. एक शख्स ने ऐसी जहानत दिखाई उस तरह की, वैसे मैं चाह रहा था हमारी कलीसिया से कोई दिखाता। I'm telling you, people are watching my sermons. बहुत सारे लोग मेरे सर्मन्स को बहुत गौर से सुन रहे, देख रहे हैं। Those who are interested in the teachings, not just the preachings. जो तालीमात में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ मुनादी में नहीं। And when they are sending me through the messengers, they are sending me the questions. I can discern the level of understanding in them. और मुझे जब वो सवाल भेजते हैं तो मैं उनकी समझ से हैरान होता हूँ। One person gave me a scripture, and that scripture I was expecting from you people. और उनमें से एक शख्स ने मुझे एक हवाला दिया और मैं तवक्को कर रहा था कि आप में से शायद कोई वो Even हवाला I मुझे was दे। expecting from Vicky, मैं तवक्को कर रहा था विकी से कि वो हवाला मुझे दे, because he was raising the question but without the scripture. क्योंकि वो सवाल उठा रहा था लेकिन सहीफे कलाम के बगैर। But somebody came and raised a question with the scripture. लेकिन कोई और आया और उसने सवाल उठाया कलाम के साथ। That's the debate now. और अब ये एक मुबासा बन गया, बहस बन So गई। I won't leave you in confusion. इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूजन में रहें। I gave you a detailed teaching about the difference between among baptizo, among pletho, among what should I say? The third one, the indwelling, the abiding of the Holy Spirit within you. No, infilling is different. You are still in the Old Testament. Baptizo is different, infilling is different, indwelling is different. मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में सिखा चुका हूँ, बैप्टिज़ो बपतिस्मा के बारे में, इंडवेलिंग के बारे में भी, थर्ड वन प्लेथो के बारे में। Yeah. A scripture came actually about the baptism. जो हवाला मेरे पास आया वो बपतिस्मा से मुतल्लिक था। I told you it's very dangerous and the sermons are being recorded. और मैं बताता हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि सरमन रिकॉर्ड हो रहे For हैं। me, मेरे लिए ये बात हो सकती है because नुकसानदेह, God can judge me. क्योंकि खुदा जो है वो जज कर सकता It will है, be considered a blasphemy against the Holy Spirit. क्योंकि ये बात पाकरू के खिलाफ भी जा सकती है। I'm so much afraid since I have started teaching on this. मैंने जब से ये मजमून लिया है मैं कुछ खौफजदा भी हूँ। Yeah, I'm telling you. मैं साफ कह रहा हूँ, I have studied Pastor Benny Hinn. मैंने पास्टर बेनी हन का मुतालिया किया I have studied the book of Dr. Miles Monroe, The Governor, The Holy Spirit. और मैंने किताब भी पढ़ी पास्टर साहब की, Miles Monroe. माइल्स मनरो की। I have studied Mike Murdoch. माइल मुडो को मैंने पढ़ा, I have studied Pastor Chris. पास्टर क्रिस को भी मुतालिया मैंने किया। Many books on the topic of Holy Spirit. बहुत सारी किताबें मैंने पाकरू पर And पढ़ी I have studied many more people on the topic of Holy Spirit. और मैंने और बहुत सारे लोगों को मुतालिया किया है जो इस मजमून पे बात कर। You will not find what I am teaching you. You will not find a single thing in those books. उन किताबों में एक भी चीज जो मैं सिखा रहा हूँ नहीं आपको मिलेगी। So anybody can come up and raise question against me that from where this person is teaching. तो कोई भी शख्स आके सवाल उठा सकता है कि आप कहाँ से सिखा रहे हो। No higher authority in this world इस दुनिया में कोई भी बड़ी अथॉरिटी has ever preached this. ये बात उसने मुनादी नहीं की। So who will endorse me? कौन मेरी तस्दीक करेगा? Huh? There is nobody. क्योंकि और कोई है ही नहीं, Only the scripture and the word. सिर्फ कलाम है, सहाइफ है, Nobody else. कोई और नहीं। Even though I'm not greater than them. ये मैं जरूर कहूँगा कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ Not mature and senior in the ministry. और मिनिस्ट्री में भी कोई सीनियर या मैच्योर नहीं हूँ। But when I go through, even I studied the book of man of God, Kenneth Hagin. और मैंने केनेथ हैगन साहब की भी किताब को पढ़ा He is a father of faith. और वो ईमान का बाप है। Still, many of the teachings are ambiguous. लेकिन बहुत सारी तालीमात जो है वो एम्बिगुअस है, उनकी समझ नहीं आती। With very humble heart, I'm saying it. मैं बड़े आजिज़ दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। All these big names I mentioned,
जितने भी ये बड़े बड़े नाम जिनका मैंने जिक्र किया, I can raise question on them and they won't be able to answer me. मैं उन पे सवाल उठा सकता हूँ और वो जवाब नहीं दे सकेंगे। I'm telling you. मैं ये साफ कह रहा हूँ, You have not studied them, I have studied them. मैंने उनको पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा। And if I raise a single question on any of the book, और इन किताबों में से अगर मैंने किसी पर एक भी सवाल उठा दिया, they won't be able to answer. वो उसका जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। That's the level of study I have done. ये है मुतालिया का वो लेवल जो मैंने कर रखा है, So I'm very careful इसलिए मैं बहुत मुहतात हूँ, because there is no endorsement in this world क्योंकि इस दुनिया में कोई तस्दीक नहीं आएगी for these teachings. जो टीचिंग मैं दे रहा हूँ। And only the Spirit of the Lord will endorse it. सिर्फ खुदा का रूह ही इसकी तस्दीक कर सकता And it can only give a testimony from within you. है और ये आपके अंदर भी गवाही को पैदा कर सकता So you need to be a good student. है। इसलिए आपको अच्छे तालिब इल्म बनना है। What I teach you, जो कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, you should re-study and revisit that. आपको उसको दोबारा पढ़ना है। So if there is any wrong teaching, अगर कोई गलत तालीमात हैं, you tell me. आप मुझे बताइए, I will answer. मैं उनका जवाब दूंगा। One person raised a question एक शख्स ने सवाल उठाया, and he said that I have a scripture उसने कहा कि मेरे पास एक हवाला है that before the ascension of the Jesus Christ, कि यीशु के आसमान पर उठाए जाने से पहले Jesus Christ said that wait and you will be baptized with the Holy Spirit. यीशु ने कहा कि तुम इंतजार करो तो फिर तुम्हें बपतिस्मा मिलेगा। And then they waited and they got the baptism. You preached that it was not the baptism, but it is written that it was a baptism. और उन्होंने इंतजार किया और उन्हें बैप्टिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने उसको बैप्टिज्म नहीं कहा। Again I say the things of the Spirit are very, very sensitive. फिर मैं कहूँगा कि रूह की जो चीज़ें हैं सारी बहुत हसास हैं। I questioned that person back मैंने वापस उस शख्स से एक सवाल कर दिया। from John 20:22. यूहन्ना 20:22 से मैंने you उससे go? सवाल किया। Can you go? क्या पढ़ सकते हैं आप इसे? यूहन्ना 20 Please. और ये 22 कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुछ लो। Complete it if you can. जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं। No, if you can read from the previous. यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Sending और ये कहकर उन पर फूंका ministry और उनसे कहा, रूह कुछ लो। is he blew उन्होंने रूह को फूंका, Holy Spirit. पाक रूह को। In another scripture, Jesus says that when Holy Spirit is given to you, He is not giving you Holy Spirit in parts. दूसरे वाला जात में हम देखते हैं कि जब पाक रूह यीशु कह रहे कि मिलेगा तो वो हिस्सों में नहीं मिलेगा। Do you remember that आपको ये याद है scripture? ये हवाला? Okay, no problem. But when Jesus is saying that He is not giving you Holy Spirit measuring after measuring, जब यीशु कह रहे हैं कि वो पाक रूह माप कर नहीं देते, so it means He is giving you full Holy Spirit. तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल पूरा पाक रूह दे So रहे हैं। Holy Spirit is a person; He will be given a full person. पाक रूह एक शख्स है तो इसलिए आपको पूरा ही शख्स मिल रहा है। No, listen it. क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप कर नहीं देता। So if Jesus blew on the disciples, अगर यीशु ने पाक रूह को फूंका शागिर्दों पर, answer me, was this Spirit incomplete or in parts? तो क्या ये पाक रूह नामुकम्मल दिया गया या हिस्सों में दिया गया? Was this Spirit incomplete or in parts? क्या ये पाक रूह जो है वो हिस्सों में था, बटा हुआ था? Still they need a baptism. क्या उन्हें जरूरत थी बपतिस्मे की अभी भी? It's John 20:22. यूहन्ना 20:22 आए। And yet there is a long gap in between the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त आने तक अभी गैप है, काफी दिन है। So I gave you the evidence that this was the empowerment with the fire. मैंने सबूत दिया कि ये कुव्वत है आग के साथ। Holy Spirit was already
was already with them, पाक रूह पहले ही उनके साथ था, given to them. उन्हें दे दिया गया था। Jesus in John 14 chapter said, He is with you यूहन्ना 14 बाब में यीशु ने कहा कि ये पाक and रूह तुम्हारे साथ है will be in you, और आपके अंदर होगा, and that is the infilling. और ये रूह से भरना है। He was referring to about. और यही यीशु इस तरफ बात कर रहे हैं। It's so complicated. ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, Very complicated. बहुत मुश्किल बात है। So if I agree with you, okay, अगर मैं आपसे एग्री कर भी लूं, for instance, मिसाल के तौर on that scripture, पर उसी हवाले की बुनियाद पर, then this same promise where Jesus promised with the disciples that you will be baptized, तो फिर वो वादा जब जो यीशु ने किया कि तुम बपतिस्मा पाओगे, it was not done on the day of Pentecost, only on day of Pentecost. ये सिर्फ पेंतीकोस के दिन ही नहीं हुआ पूरा, It was repeated again. इसको दोहराया गया। So what promise was Jesus making? Was it for just the day of Pentecost or for the continuity? जो वादा यीशु कर रहे हैं वो सिर्फ पेंतीकोस के दिन तक है या ये चलता रहेगा, मुसलसल है ये वादा? Do you remember where in the book of Acts, इमाल की किताब में when Peter was preaching जब पतरस मुनादी कर रहे थे and people were filled, और लोग पाक रूह से भर गए, and he was preaching, people were filled, और वो मुनादी कर रहे थे और लोग पाक रूह से भर गए, and then he said that this promise was made by Jesus. फिर उन्होंने जब वो भर गए तो कहा कि ये वादा यीशु ने किया था। Can you find that verse? Okay, read. पतरस ये बातें कह ही रहा था Listen it. Okay. कि रूह कुद्स तुम सब पर नाजिल हुआ। It was the outpouring. It was in English it is written, Holy Spirit fell upon it. Again, it's not the baptism. Word baptism is not there. Okay. जो कलाम सुन रहे थे Mm-hmm. और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे Mm-hmm. वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्स की बख्शिश जारी हुई। That gift. Please pause it. Do you know when Peter is talking about Holy Spirit, जब पतरस पाक रूह के बारे में बात कर रहे हैं Peter is having another lens. तो पतरस और तरह से देख रहे हैं इस चीज Every time when he is talking about the experience with the Holy Spirit, को। जब भी पतरस बात करते हैं पाक रूह के तजर्बा के बारे में, whether you consider it baptism, whether you consider it infilling or indwelling, चाहे आप इसे बपतिस्मा ले लें या इंडवेलिंग ले लें या इनफिलिंग ले लें, he considers Holy Spirit as a gift. वो पाक रूह को एक गिफ्ट या बख्शिश के तौर पर लेते When you receive Jesus Christ, हैं। जब आप यीशु को कबूल कर लेते you हैं, receive this gift. आप इस बख्शिश को भी ले लेते हैं। Yeah, he is calling it bakshish. Do you remember that scripture? रूह कुदस इनाम में पाओगे। हाँ? It's the lens of Peter. ये पतरस जिन निगाह से आंखों से देख रहा वो है। Peter is always saying that it's a gift. पतरस हमेशा इसे यही कह रहे हैं कि ये एक बख्शिश है, The ये इनाम moment है। you are baptized in Jesus, जब आप यीशु में बपतिस्मा ले लेते हैं, you receive this gift. आपको ये बख्शिश मिल जाती है। I am following his lens. मैं पतरस के लेंस या उसकी निगाह से देख रहा हूँ I'm इस बात not को। considering that it can happen 12 years later, 14 years later, 12 months later. I consider when you are born again, जब आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं it's a gift. तो ये गिफ्ट भी आपके साथ है। You read Peter आप पतरस को पढ़ लीजिए, from Acts इमाल से लेकर and in his epistles, और उसके दोनों खतूत में you will know this. आप इस बात को जान जाएंगे। I am using his lens मैं उसकी नजर इस्तेमाल कर रहा हूँ about निगाह the से, experiences with the Holy Spirit. पाक रूह के तजर्बात के बारे में। Okay, now finish this scripture. What happened? क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते So सुना। again, if it is a baptism and you say that baptism is with the sign of the Zubane, then where is the rest of the sign? अगर आप ये कहते हैं कि यही यानी बात है कि गैर जुबानों के साथ ही पाक रूह का तजर्बा हो सकता है, तो बाकी निशानात कहाँ हैं? They were praising God, वो तो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, and understandable praise. और जो तारीफ कर रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं, वो समझ आ रही है। Please.
पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए हाँ. जिन्होंने हमारी तरह रूल कुद्स पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया So जाए। he commanded actually. उसने हुक्म दिया, Command. हुक्म दिया यहाँ Do पर। you understand this word? इस लफ्ज की आप गहराई को जानते हैं? If I raise myself up अगर मैं यहाँ से उठूं and I command Pastor Asher to baptize this lady, और मैं पास्टर आशिर को हुक्म दूं कि इस खातून को, औरत को बपतिस्मा दो, and what will be his response? तो इस पास्टर साहब का क्या जवाब होगा? In early church, इब्तदाई कलीसिया में commands were ruling. यानी हुक्म देना ये एक रूल होता था, ये रूल करती थी, Physically भी, they spiritually भी. जिस्म में भी और रूह में भी। He commanded death. And Ananias and the Sapphira, they gone. और जब ये हननिया सफीरा की कहानी को आप जानते हैं, किस तरह से उन पर हुक्म जो है They were वो gone. वो चले गए इस दुनिया से, Command in the spirit realm. और रूहानी आलम में एक हुक्म दिया। The command was there in the early church. इब्तदाई कलीसिया में हुक्म सादर होता था। So we plead you people, we request you, please take water baptism, please take water baptism. हम आपसे दरख्वास्त करते रहते हैं कि पानी का बपतिस्मा ले लें। And every month you are postponing this, और हर महीने आप इसको जो है वो इल्तवा का शिकार कर देते postponing to the next year summer vacations. हैं। अगले साल पे ले जाते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में लेंगे, Then you think that now your health is disturbed, I feel cold in the water. और फिर आप कभी सोचते हैं कि अब तो मुझे सर्दी लगेगी पानी में। What if Pastor Asher give you command, तो अगर पास्टर आशिर हुक्म दें go and take it कि जाओ और बपतिस्मा लो now within these 5 minutes, 5 मिनट के अंदर अंदर, then you will leave the church and join another church. और फिर आप हो सकता है ये चर्च छोड़े और किसी और चर्च चले जाए। They are commanding us. आप कहेंगे ये चर्च तो हुक्म सादर It's करता my choice. है, मेरी मर्जी है मैं लूं, Whether I go for the water baptism or not. मैं पानी का बपतिस्मा लूं या ना लूं, No, it's not your choice. ये आपकी चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं You है, don't know the word. आप कलाम नहीं जानते। He was commanding. वो यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं Baptize them. कि भाई इन्हें बपतिस्मा दो, Already they have received the Holy Spirit. पाकरू ने मिल चुका है, Now baptize them. आप पानी का बपतिस्मा दो। Nobody should run from this place. आप इस जगह से कोई भागेगा नहीं। When they will go, they will never return for the water baptism. अगर वो चले गए तो वो बपतिस्मे के लिए वापस आएंगे नहीं। ऐसे ही आनंद दे कर लो। So please, now another verse. The continuity. Let me search. Maybe in the 11th chapter, yeah. बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता? No, in the 16th verse, 11th chapter, 16th verse. और मुझे खुदा की वो बात याद आई। Yeah, can you read the whole context? Please. Yeah, from. और रसूलों और भाइयों ने It's 11th chapter from first. Okay. और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमल तरतीबवार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में। Okay, cut short it. Go to the event. Do you know this whole passage? He was praying. A voice, a vision came. He was taught that this will happen to the Gentiles. Then men came to take him to the home, and then. जब मैं कलाम करने लगा तो रुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ। Okay. और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। So he mentioned that it's the same promise fulfilled, promised by the Lord Jesus Christ.
उन्होंने जिक्र किया कि ये वादा पूरा हुआ जो यीशु ने किया हुआ था। So if the promise was fulfilled by then on the day of Pentecost, अगर पेंतीकोस के दिन ये वादा पूरा हुआ, then why the promise is yet to be fulfilled on every event? तो क्यों ना ये हर जगह पर हर वक्त ये पूरा Why हो? it is taking place again? क्यों ये दोबारा हो रहा है? If the promise was with them with the 120 disciples, कि अगर ये वादा सिर्फ 120 शागिर्दों के साथ ही and था on the day of Pentecost the Holy Spirit was on them, कि पेंतीकोस के दिन ही पाक रूह उन पर आएगा, why it is repeating here again? And Peter is repeating the same promise again. पतरस उसी वादे का दोबारा यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं That it's the same promise once again. कि ये वादा फिर दोबारा से पूरा हुआ है। Are you listening? Are you listening? So again, go back to John 20:22. If the Spirit was blew on them, अगर पाक रूह उन पर फूंका गया and it was the full Spirit, और ये मुकम्मल पूरा पाक रूह, not in parts, ये जुज़वी नहीं, what is happening now तो फिर अब क्या हो रहा है? in Acts? इमाल में, इमाल की किताब में क्या हो रहा है? The things of the Spirit. पाक रूह की बातें। You are born of the Spirit, पाक रूह आप पर फूंका गया, and then once again you are receiving the Holy Spirit. आप फिर से पाक रूह ले रहे हैं। Ah, it's strange for me as well when I read the word. जब मैंने कलाम को पढ़ा मेरे लिए भी एक अजीब बात थी। Every event actually denying the previous event. हर वाक्य पिछले वाक्य का एक इनकार सा नजर आता है। You are praying for the baptism of the Holy Spirit. और आप पाक रूह के लिए दुआ कर रहे हैं। What if Pastor Naveed has already blew upon them in any service? तो जब एक सर्विस में पास्टर नवीद ने पहले फूंका है आप पर, तो उसका क्या है? Which spirit I gave you? अब मैंने कौन सा पाक रूह आपको दिया? You answer me. आप जवाब दीजिएगा। And even before this, और इससे पहले भी when you were born, जब आप पाक रूह से पैदा हुए, as I told you people, जैसे मैंने आपको सिखाया भी है you are born of the Spirit. कि आप पाक रूह से पैदा हुए, So you are overwhelmed by the Spirit in the womb. तो आपको पाक रूह ने घेर लिया। In the womb of God, actually. You are born of God, you are born of Spirit. आप रूह से या खुदा से पैदा हुए, So you are overwhelmed. A baby, when it is in the sack, तो आप ऐसे ही जैसे आप यानी इर्द गिर्द पाक रूह है, जैसे बच्चा जो एक सैक में होता है, yeah, that I gave you the example that baby can drink that same water. यानी बच्चा जब रहम में होता है तो वो उस पानी को भी पी सकता है जिस वो सैक में होता है। The water is inside, the water is around the baby. पानी उस सैक के अंदर है, उसके इर्द गिर्द है बच्चे के, Yeah, and the baptism is there. और बपतिस्मा है And I यहाँ। gave you the scripture from Ephesians, और मैंने इफ्सियों में से आपको हवाला दिया the seal of the Holy Spirit. पाक रूह की मोहर के बारे में, And that's the lens of the Peter. और यही नुक्ता नजर है पतरस का। When you are baptized in the Lord, जब आप खुदा से बपतिस्मा ले लेते हैं, you receive the gift of the Holy Spirit. आपको पाक रूह का गिफ्ट मिल जाता है। The moment you receive Jesus, जब आप यीशु को कबूल you करते receive Holy Spirit हैं, आपको पाक रूह मिल जाता as a gift. है एक बख्शिश के तौर पर। So what I am preaching जो मैं सिखा रहा हूँ आपको बात, is actually not out of the word of God. ये कलाम से बाहर बात नहीं है। It may contradict with other men of God, ये दूसरे मर्द खुदा की बात से मुतजाद हो सकती है। but maybe they are not wrong as well. ये भी हम कह सकते हैं कि वो भी गलत नहीं है And I am also not wrong. और मैं भी गलत नहीं हूँ। So I leave this matter on you people. तो फिर मामला आप लोगों के अब हाथ में है। I gave you the full studies. मैंने सारी स्टडी सारा मुताले आपके सामने रख दिया, I gave you the scriptures. मैंने हवाला जात भी आपको दे दिए। Now you go, अब आप जाइए, you inquire from the Lord, आप खुदा से पूछिए and you follow what you want to follow. और फिर वो पैरवी कीजिए जो आप चाहते हैं पैरवी करना। I will never question your following. मैंने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया कि आप क्या पैरवी करें, But I will question your style of ministry. लेकिन मैंने आपकी खिदमत के अंदाज पर जरूर सवाल उठाया If you will, I will find you people forcing anybody to speak in tongues. कि अगर आप किसी को फोर्स करेंगे कि आप गैर जुबान बोलें, For the baptism of the Holy Spirit, और यानी ये पाक रूह के बपतिस्मा के लिए यही निशान है, I will stop you. फिर मैं आपको रोक दूंगा। That's simple. और ये एक सादा सी बात है। Otherwise, you can believe आप ईमान रख सकते हैं that baptism is a promise of the Lord Jesus Christ, कि बपतिस्मा यीशु मसीह का वादा है, and with the baptism
और बपतिस्मे के साथ you experience Holy Spirit at different level आप पाक रूह का मुख्तलिफ तरह से तजर्बा करते हैं rather than the experience of the new birth. नई पैदाइश के तजर्बे से फ़र्क Yeah, and the experience of infilling. और बाहर जाने के तजर्बे से भी फ़र्क। It's up to you people. अब आप पर है कि आप किस तरह से I gave you full picture. मैंने पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी। So I take 1 minute of pause. मैं 1 मिनट का वक्फा लूँगा। You can question me if you have. Then I will talk about something about baptisms, the types of baptisms. अगर आपके पास सवाल हो तो आप कर लीजिए, उसके बाद हम बैप्टिज़म के इक़साम पर सीखेंगे। Any question? Any question? Yeah. खाने के लिए प्रेयर करते हैं तो मोस्टली कई पास्टर गैर ज़ुबान में करते हैं तो इज इट राइट टू No need. It's a wrong understanding. That person doesn't know. Question ये है कि खाने पे भी दुआ करते हुए some pastors pray in tongues. अगर तो गैर ज़बानी दुआ करना है पब्लिक च करन दिया ते ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਕਰੋ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਜਿਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ओके लेकिन मोस्टली तो तर्जुमा नहीं करते दैट्स द प्रॉब्लम विद द चर्च कि तर्जमा करना ही बस ज़बाना ही बोली जानी है रूहानियत भाई जानी मैं बड़ा रूहानी हमने अभी सीखा कि कितने एविडेंसेस और हैं इन फीलिंग दे उन्होंने तो किसी का ध्यान नहीं कर उन्होंने तो किसी का ध्यान नहीं बस ज़बाना ही बोलनी है नो प्रोफेसी प्रोफेसी का भी मैंने बताया प्रोफेसी का भी लिखा बाकी क्यों नहीं होंगे तजर्बे तुम जो वाकई जैनवन रूल को दसे बाकी क्यों नहीं हो जाते तुम एवं बस तोड़ दिता एक ट्रक की बत्ती मगर ये निशान यो ही जे वो पूरा करके तुम विखाते कि मैनू जैनवन होया एनी क्वेश्चन गल है भी 2 खिलाड़ी आउट कर देते क्योंकि वही अगे आने मैं ही करा अच्छा मैं तो नहीं चाहता कि मैच देखा जाता है लेकिन रोहित शर्मा को उसने बोल्ड कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं शहीन ने अच्छा हाँ जी एनी क्वेश्चन विकी स्टिल ये तो मैं दोबारा टीच नहीं करांगा सो कॉम्प्लिकेटेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैंने बड़ा सिर खपाना पे मैं फिर बोल रहा हूँ होली स्पिरिट के अगेंस्ट चली जाती है बात हाँ अगर कोई नए सिरे से पैदा हुआ है पाक रूह का बपतिस्मा से हो गया है या पाक रूह मिल गया जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कब तक बोलेंगे कि वो है सिन भी बाद में आता है लाइफ में चलता देखो वो आप स्पिरिट में बोर्न हुए हो फ्लैश में नहीं फ्लैश में आप अपने माँ बाप से बोर्न होते हो फ्लैश का मरना इज ए प्रोसेस रीजनरेशन का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है थियोलॉजी में जब आप थियोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो उसमें रीजनरेशन का एक टॉपिक पढ़ाते हैं रीजनरेशन का मतलब जो तुम मसीह च पवस्त होंगे या पिंडा थावां दे नूं पुछो तू भी पिंड दी है तू पैरिस तो नहीं आया तेनों पता होना चाहिए कि खट्टी नूं माल्टा कैंज बनाउंदे ने कि नहीं पता इन्हां नूं फिर पुछ लो इन्हां दे पिंड च बाग च बड़े लगे ਪਿਓਂਦ हैं पेवंदकारी होना पेवंद नहीं आंदे ਪੰਜਾਬੀ ਚ अच्छा पेवंद हाँ पेवंद उसको हमने ज़राअत की किताब में 8वीं में हमने कलमकारी सीखा था पढ़िया होएगा तुम्हें ज़राअत तो पढ़ी होएगी किन्ने किन्ने ज़राअत पढ़ी धक्के नाल सानूं पढ़ाई गई है ज़्यादती साडे नाल कीती कि अज साडे काम आ कलमकारी उहनूं आंदे हन कलमकारी या पेवंदकारी चैप्टर का नाम सी ओहदे च ए खट्टी है नहीं कोई इधरों लै गलत हो जाना बात अच्छा मैं मिसाल दी है चलो खट्टा है इनू हुण मिठा बनाना अब
माल्टे की ले ली जाती है और उसको छील के उसकी छाल को उतार के उसको काट कर उसके अंदर पेवस्त कर दिया, सिमिलरली जैसे आप जीसस में पेवस्त होते। फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली इधर से फल और फ्रूट और पत्ते आना शुरू हो जाते हैं इस शाख से, और ग्रेजुअली खट्टी को काटते चले जाते हैं। इधरों है वाला ट्री जड़ा भी वो ग्रिप ले लेंदा उसे तने च कट चोट की हो गया, खट्टी लंबा प्रोसैस होंदा है। मैं यही समझाना चाहता ये अज तुसी नवे सिरे तो पैदा हो तो कल तुहाडे चो गुनाह खत्म हो जाए, ये नहीं होता। जीसस में पेवस्त होकर आपको टेस्ट लाने तक, आपके अंदर खुशबू आने तक, आपके अंदर फल लाने तक टाइम लग जाता है। रीजनरेशन का टॉपिक है, इसलिए जी डाली मेरे से पेवस्त रही है, टेक्स टाइम रहना पेगा तुहानू। कई बार शरारती जाते हैं वो ला आते होंगे, उन्होंने वाह टेपा टूपा की होंगे, बनिया बुनिया होंगे, लेकिन वो ला आते हैं। आप गुलाब के जाके देखिएगा, कभी किसी फसल में चले जाएंगे, गुलाब जहाँ काश्त होते हैं, गुलाब की भी ऐसे पेवंदकारी हुई होती है, उसको भी ऐसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी जनरेशन बदल रहे होते हैं। कलमकारी बहुत है डिफरेंट। चलो ना मेरी अंडरस्टैंडिंग से इजाफा करना चाहते हैं, मैंने समझाओ बल्कि हाँ, क्योंकि मैंने 8वीं जो पढ़े हैं 8वीं बड़ी पुरानी से, वो बता रहे हैं कलमकारी और पेवंदकारी दोनों फ़र्क हैं, हम सीख लेते हैं इस पर भी, बताएं। हाँ जी, कलमकारी जो है वो यानी कि सेम पौधे की कलम लेकर लगाई जाती किसी और जगह, क्योंकि वो बीज से नहीं उगती, वो उस कलम से ही होती है। तो इसका बेस्ट जो एक्सप्लेन किया है पेवंदकारी जो है, ग्राफ्टिंग, वो बेस्ट। ग्राफ्टिंग इज द राइट टर्म, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सो आगे समझ के नहीं आई। कलम इज द सेम टू सेम, पेवंद इज फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट। थैंक यू ब्रदर नमान, आपके तजर्बे के पिंड के तजर्बे का जारी गल किताबा जो रेंज नहीं होता, तजर्बा जो पैलियाँ का इनके बड़े अच्छे होते हैं, इतने इतने हम तोड़े भर के बैठ जाते थे रात को। माल्टा किन्नू फ्रूटर इन्होंने बागान का बहुत अच्छा होता, आप एक ऑर्डर दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बैप्टिज़म की टाइप्स थोड़ी सी देख लें, चलते चलते बता देता हूँ बैप्टिज़म्स कितनी तरह के हैं। इस पर क्वेश्चन है, इस पर स्टडी करनी है आपने, मैं छोड़ दूँगा। हाँ, पुराने आदि में कोई बपतिस्मा नज़र आता है कि नहीं आता? आना चाहिए। पतरस ने कोड किया हुआ है मूसा का बपतिस्मा, ओके, पढ़ लीजिएगा जाके मूसा का बपतिस्मा। और उसके बाद बपतिस्मा आ जाता है यूहन्ना का। काहे का था? पानी। कोई पूछ सकता आपको पानी से दे रहा था, क्या था उसका रीज़न? 3-4 जगह हवाला मिल जाएगा आपको, यूहन्ना खुद भी कह देता है, मैं तो तुमको पानी से तौबा के लिए, इट वाज फॉर द रिपेंटेंस, तौबा करो। उसकी प्रीचिंग की ये डायमेंशन थी, तौबा करो, उस्मान दी बादशाह नज़दीक है, तो वो तौबा के लिए दे रहा था। अच्छा, उसके बाद जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। अच्छा जीसस क्राइस्ट का तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उन दिनों में लोग मुर्दों का भी बपतिस्मा देते थे, मुर्दे का बपतिस्मा था ही, पॉल ने लिखा हुआ उसके बारे में। वो क्यों होता था? इंतहाई कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बताता क्यों। लोग कहते हैं कि साडा जिहड़ा बंदा मर गया और गैर नजात याफ्ता मर गया, तो अही वो मरे दे बिहाफ से बपतिस्मा लैके उन्होंने क्लियर करवा देने। अब जाकर अब जब आप पढ़ोगे ना पॉल क्यों इन बातों को लिखता है, करंथियों के खाते 15वें बाब में कहीं लिखेगा वो इस चैप्टर को, 15वें जो हो सकता है किसी और, मुर्दों का बपतिस्मा। उसके बाद मसीह जी उठा क्यों, पहले करंथियों 15वें बाब जो कि जिक्र हो रहा उस बपतिस्मे का, उन्होंने पाल लेना था, पता लगे कि ये था। फिर जीसस क्राइस्ट ने अपने एक और बैप्टिज्म की बात की थी, जो वो लड़न डे हन दोवें जाने याकूब ते यूहन्ना कि मैं सज्जे बहना मैं खब्बे बहना, तो यसू ने कहा मैं हजे बपतिस्मा एक लैना, तुम नहीं लै सकते। तो फिर जीसस ने उनसे क्वेश्चन किया, लै सकते जे? कहते हाँ लै लाँगे। तो फिर जीसस ने उन्हें मेरा कहा था मैनू राइट कर देना, करैक्ट कर देना। फिर जीसस ने उन्हें कहा क्यों तुम लवोगे, तो बाद 10 जेडे होर शगिर्द सन नाराज होए याकूब ते यूहन्ना तो कि इस खब्बे सजे बहन दी गल्लां कर देनी यसू ने। सो सन्स में आपस में लड़ाई हो सकती है खब्बे सजे बहन तो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक डॉल्फिन पुलिस वाला रखा जरा इन्हें को नाल इमेज भी रखा, आओ मैं तुम्हारी खिदमत कर, है ना वो वाली खिदमत भी हो सकती। सो
वो बैप्टिज्म जीसस क्राइस्ट जो लेने की बाबत इशारा कर रहे थे, दैट वाज द पेनफुल एक्सपीरियंस जिहदे थ्रू यसू ने गुजरना सी क्रॉस का, क्रूसीफिक्शन का, वो बैप्टिज्म की तरफ इशारा हो रहा है। और जीसस ने बोला इन्हों बाप बेटे रूल कुदस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लीकेटेड टीचिंग। हुण तुसीं नवां इतनामा जो पढ़ोगे तुसां ध्यान ना पढ़ना है, इमाल की किताब खास तौर पे अगे भी चल के बड़े ख़तों में पॉल ने जिक्र किया है बपतिस्मे का, करंथियों में किया है, रोमियो 6 बाब की 3-4 आयत में किया। चलो पढ़ लो, पढ़ो, खोलो छेती ना नीलम तू 6 बाब 3-4 आयत, गलतियों के खाचे जाल सुनील 3 बाब की 27वीं आयत, कुलसियों से जा 2 बाब की 12वीं आयत आशर बपतिस्मे पढ़ लेने अच्छी छुट्टी। मैं क्लोज कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर रहे हैं। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया। या तू पहला पढ़ देता है, इन्होंने पहला पढ़ तू। अच्छा, क्या तुम नहीं जानते हाँ कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया हाँ। तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। सो जो बपतिस्मा पानी का आप ले रहे होते हैं, जब आप तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ये वाला होता है। 3-4 पढ़ दी थी पूरी, पढ़ दे 4 भी। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। ओके, अगला गलतियों। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मसीह दा, अब आप सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने क्या कमांड की थी? तुम उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, ईवन रसूलों ने नारा देना शुरू कर देता सी। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अर्ली चर्च में। इवन पॉल ने लिखा उसको कि तुसा मेरे नाम का बपतिस्मा लिया, पॉल ही कहता है ना। हाँ, कोई कहता मैं पलूस के नाम का बपतिस्मा लिया। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी हुई थी, किसके नाम का लेना है। जीसस ने कहा था उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम है। शागिर्दों को ये असाइनमेंट थी कि ताड़ी जिम्मेदारी उन्होंने बपतिस्मा भी रूह कुदस का ताड़े चर्च होना चाहिए, ताड़ी मिनिस्ट्री होना चाहिए, उन्होंने बपतिस्मा होना चाहिए जे। जो तू तौबा कर उन्होंने पानी का भी देना चाहिए, तो उन्होंने रूह कुदस का बपतिस्मा भी ताड़े। मैंने अर्ली चर्च के एंशिएंट राइटिंग्स पढ़ी है, इनके शागिर्द जो थे, इनके स्पिरिचुअल सन्स, उनके खत मैंने पढ़े हैं। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा 12 रसूलों का, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दस्तूर था अर्ली चर्च का, वो मैंने पढ़ा है। उसमें दस्तूर में एक बड़ी पावरफुल बात लिखी हुई थी कि पानी का बपतिस्मा देते वक्त जो देने वाला होता था वो भी फास्टिंग में आता था, और जो लेने वाला होता था वो भी फास्टिंग में आता था, और 3-3 दिन की फास्टिंग करवाते हैं। मुझे लगता पीटर उस लेंस से देखता था, क्योंकि सारे रेडी होकर आए होते थे, और जब वो बपतिस्मे के लिए इतने हंगरी होकर आते थे, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म भी उन्हें हौज में ही हो जाया करता था। इसलिए अब पीटर लिखता कि वो रूह कुदस नाम से मिलता है। जब वो पानी का बपतिस्मा ले रहे होते थे, मसीह में दफन होने का ले रहे होते थे, तो होली स्पिरिट उन्हें एज ए गिफ्ट मिल जाता था। अर्ली चर्च की राइटिंग में लिखा हुआ है, इनके शागिर्दों के खतों के अंदर, वो मेरे पास हैं, जो कोई पढ़ने वाला है तो मेरे को लै लेना, तुम दे देंगे। लेकिन पढ़ना बहुत पैंदा है, फिर तुहाडा बाइबल रीडिंग तुहाडी डिस्टर्ब हो जाती है, ये तो बाहर जाना पैंदा है। खैर तेरे को होना हुण तू पढ़ कुलसियों 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए। सो ऑल तीनों में एक ही बात थी, मसीह के साथ दफन होना, मरने का, दफन होने का और जी उठने का। जब पानी का बपतिस्मा है, जो आप मसीह में तौबा करके आते हैं, तो ये है पानी का बपतिस्मा। पॉल जिसकी तरफ इशारे करता है। फिर रूह कुदस का बपतिस्मा है। हुण रोला तुहाडे उत्ते जिहड़ा मैं छड्डने जिहड़ा तुहां जा के स्टडी करना है, आ बाप दा बपतिस्मा कैंज हुंदा। गो एंड फाइंड एंड गो डू द रिसर्च। वो उनको बाप, बेटे और, अगर आप इमाल की किताब पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा उन्होंने यीशु के नाम का लिया, उन्होंने रूह कुदस के नाम का लेना है। अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं, पतरस उन्होंने यीशु के नाम से मिल गया, तो इन्होंने हुण यह भी मिलना चाहिए। इन्होंने रूह कुदस का मिल गया, इन्होंने यीशु के नाम का भी दो। वेयर इज द फर्स्ट वन? गो एंड सर्च, गो एंड फाइंड। मूसा दा, यूहन्ना दा,
ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂ ਖੋਲੀ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬ? ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਬਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਚੱਲ। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, हाँ। कोई अपुल्लोस का, हाँ। कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पस और गीस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अच्छा वो समझने हैं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, आगे चल के और का भी कर देता है वो, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्टिफनस के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ मैं पलूस ਦਾ ਵਾਂ जी, मैं ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ बपतिस्मा लिया। सो यहाँ पर बैलेंस आता है स्पिरिचुअल फादरहुड की टीचिंग का। यहाँ करंथियों की कलीसिया में लड़ाई पड़ी हुई सी कि मेरा स्पिरिचुअल फादर पलूस है, मैं उसकी स्पिरिट चों हाँ। इसकी अलग टीचिंग है, मैं आपको बता दूँ। ये बहुत डीप टीचिंग है जी चर्च में हजम नहीं होनी, इसलिए मैं नहीं देने लिया। स्पिरिट दे विच होना, अपने स्पिरिचुअल फादर की स्पिरिट च होना, यदि अज लोगों को समझ नहीं। इवन जीसस क्राइस्ट के दिनों में फकीयों फरीसियों को इस चीज़ की समझ थी, चर्च में नहीं है समझ। वो कहते हैं एलिया की रूह में। इवन जीसस के शागिर्दों को भी समझ थी। जीसस ने कहा तुसी ओदी रूह दे नहीं जे, तुसी मेरी दे जे। हाँ, इवन जीसस ने भी नहीं कहा कि तुसी अपनी रूह दे जे या रूह को दस दे, उन्होंने कहा मेरी रूह दे, तुसी उस रूह दे नहीं, अपने अपने उस्ताद की रूह दे हो। गल समझ आती? सो यहाँ रोला पड़ा हुआ था अगली चर्च में करंथियों की कलीसिया जे, मैं पलूस दा उन्होंने कहा मसीह वंडिया गया बपतिस्मा तुसी यसू दा लैन दे जे, साडे हथों लैके साडे बपतिस्मे नहीं जे लैन दे। सो इट्स नॉट कि मेरा बपतिस्मा तुहानूं होण डिया, मैं तुहाडा स्पिरिचुअल फादर जरूर हाँ, तुसी मेरी बूम चों जन्म जरूर लैन दे जे, लेकिन बपतिस्मा तुसी रूह कुदस दा ते यसू दा ही लैन दे। सो आई थिंक सो मैं बंद कर देना, इत्थे लम्मा हो जाता है ज़्यादा। बपतिस्मा इज़ ए कंप्लीकेटेड टॉपिक। मैं दसन दिया चर्च नहीं टीच करता रहा, उसकी वजह नाल चर्च में समझ पाई।